Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari. Today we will discuss some new topic from IISc second year, and our today's topic is linear programming. So what this linear programming is, the first question arises. So a programming or a steps which we can use to solve some linear equation is known as linear programming in general. Okay. So here is the linear equation in two variable. In class 10 you have solved the linear equation for drawing some graph, but here we will use two or more than two linear equations to solve a graph and also to find the solution of that graph, that is solution set. So let's first see what is linear equation in two variable. So the linear equation in two variable inequality is the inequalities of the form ax plus by less than equal to c, the less than equal to very important, and ax plus by less than c, strictly less than c, ax plus by greater than equal to c, and ax plus by greater than c are called the linear inequations. Here we are not using equal to sign, we are using less than equal to, somewhere we are using greater than equal to, somewhere we are using strictly less than, and also strictly greater than. That's why we are calling it the linear inequalities, the linear inequations in two variable x and y. Okay, so this is the linear equation. So how to draw a graph of these linear equations? So we will see the method by the following steps. So what are the steps? So step 1. To solve the linear equation, first we consider the given equation ax plus by equal to c and plot the resulting line. Okay. The second step is, in the case of greater than or less than, draw the line. Dotted line we use, otherwise we use the thick lines if it is greater than equal to or less than equal to, then we use thick lines. Now thereafter the third step is we choose 0 0 and we put this 0 0 in the inequation, and we see that if it is satisfied, then the shade of the portion of the plane which contain the chosen point, otherwise the shade of the portion which does not contain the chosen point. तो अगर ये satisfied करता है तो हम जो shade करेंगे हमारा portion को plane में, वही हमारा क्या होगा, chosen point होगा, और उसी के according हमारा क्या होगा, solution निकलेगा. Now fourth step is that the shaded portion represents the solution set. So let us see an example how can we draw the graph of this linear equation. So I have chosen a question here, and I have taken this question as solve or find the graph, the solution set of the equation 2x minus y greater than equals to 1. Okay, greater than equals to 1. So to solve this equation, I have first write the given equation as 2x minus y equal to 1. Whatever you have given, you just write that equation in the equal to sign. Okay, whatever the inequality is, just forget the inequalities, you just write the 2x minus y equal to 1. Thereafter we solve this equation. Okay, we put this equation here in the denominator, so we will write x by 1. देखो यहाँ पे क्या है, 2x minus y equal to 1 है. तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x divided by 1 plus y डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं. अब क्योंकि 2 मेरा यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है, तो इस न्यूमरेटर को हम नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी प्लस y डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू 1. तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में, ये जो वैल्यू है ये आपके x एक्सिस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और y के नीचे जो भी पॉइंट मिलेगा वो आपके y एक्सिस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू 1. अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि जो लाइन आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये एक इंटरसेप्ट बनाता है 1 बाई 2 और माइनस 1 ऑन द एक्सिस पे. तो अब पॉइंट्स निकालते हैं. पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट लिखने के लिए हम लिखेंगे लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 कट द एक्स एक्सिस एट, पहला 1 बाई 2 निकला था ना, y की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगी a 1 बाई 2 0, और दूसरी वैल्यू माइनस 1 निकली है
तो दूसरी वैल्यू के लिखेंगे एंड ऑन द वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस, हेड एक्सिस इज रिटन, बी पॉइंट हमने नाम दिया 0 -1 एंड देन आफ्टर वी विल चूज 0 0। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 0 0 चूज करना है। इस 0 0 को हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे और देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो अब लेते हैं 0 0 0 0 लेने के बाद हमने यहाँ पर ही पुट किया, तो पुट करने पे क्या मिला, 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो 0 तो बराबर है 1 से, ये सही है, लेकिन क्या 0 1 से बड़ा है, ये तो गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन हमारा निकला ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है। और क्योंकि ये फॉल्स है इसलिए हम लिख रहे हैं विच इज़ नॉट ट्रू एंड सो द सोल्यूशन सेट डज नॉट कंटेन 0 0। मतलब अब जो भी सोल्यूशन हम बनाएंगे उसमें हमारा 0 0 जो क्या है वो कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने आंसर में फिर क्या लिख दिया, हेंस द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट। ओके, अब शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट हमने लिख लिया। अब देखो फिगर को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ फिगर ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले एक एक्स एक्सिस है, फिर एक वाई एक्सिस रखा। अब हमारे पॉइंट जो भी है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उसको हमने पॉइंट आउट कर लिया। जैसे हमने पॉइंट आउट किया तो हम पहला लाइन खींचेंगे, किसके लिए, पहला लाइन खींचेंगे हम 1/2 0, और फिर हमने जो पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे देखो 0 -1, ये वाली पॉइंट और एक ये वाली पॉइंट, 2 पॉइंट मिले। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको स्केल रखते हुए ऐसे सीधे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद आप देखो हमने क्या लिखा कि ये 0 0 को कंटेन नहीं करता, डज नॉट कंटेन 0 0। मतलब अब जो भी सोल्यूशन हमारा निकलेगा वो 0 से क्या भागेगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर अंदर की तरफ नहीं, कहाँ जाएगा, इधर बाहर की तरफ, इन्फिनिटी, बाहर खुले आसमान में चला जाएगा। अगर ये चीज़ ट्रू होता तो हम क्या करते, ये चीज़ जो है हमारा क्या होता, 0 की तरफ मूव करता, और तब हम हमारा ए जो पोर्शन है इसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए ये नहीं होके 0 को टच नहीं करेगा और 0 से क्या भागेगा, दूर भागेगा, और इसीलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट हो गया वो कैसा हो गया, यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखो फिर हमने एक दूसरा क्वेश्चन ले रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। इनइक्वेशन हमने क्या ले रखा है, पहला है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दूसरी है x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो करते हैं सोल्यूशन के लिए हमने लिखा पहले, कंसिडर द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 6 एंड x + 4y इक्वल टू 4। ओके, ऐसा आएगा हमारा। तो ऐसा आने के बाद हम लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाई 6/2। देखो अब ये 6 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और 2 उसके भी नीचे, तो हमें मिल गया 6/2। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6/3। इसी तरह यहाँ पे जब चेंजेस करेंगे तो हमें मिलेगा x/4 और y 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 ऑलरेडी नीचे आया और ये 4 उसके भी नीचे आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। अब सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमें मिल गया x/3 + y/2 इक्वल टू 1। और दूसरा इक्वेशन जो हमें मिला है वो है x/4 + y/y 1 इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, ओके। अब आते आगे, तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि किस किस पॉइंट पे इसने x एक्सिस पे कट किया, क्या पॉइंट हमें x एक्सिस पे मिले, क्या पॉइंट हमें y एक्सिस पे मिले। सो लेट्स फाइंड इट। तो hence here the line 2x + y equal to 6 cut the x axis at 3 0 and 0 2, फर्स्ट लाइन से ये मिला, and the line x + 4y equal to 4 cut the x axis at 4 0 and the y axis at 0 1। तो 4 पॉइंट मिल गए, 2 आपके x एक्सिस पे मिले, 2 आपके y एक्सिस पे मिल गए। ओके ओके, अब हम देखेंगे क्या जो सोल्यूशन सेट है वो 0 की तरफ होगा या ओरिजिन से आपका दूर जाएगा, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए पहले 0 0 को लेते हैं। हमने 0 0 को चूज़ किया, चूज़ करने के बाद हम 0 0 के इक्वेशन वैल्यू को इनइक्वालिटीज़ में डालेंगे, मतलब इस गिवन इक्वेशन में डालेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहले देखते हैं 2 × 0 + 3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6।
तो हमें मिला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बट ये क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है, 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, विच इज़ नॉट सेटिस्फाई, एंड सो द इक्वेशन 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डज नॉट कंटेन 0 0 एज द सोल्यूशन सेट। फाइन, अब आते हैं आगे। फिर आगे कहता है अगेन वाइल पुटिंग 0 0 इन x + 4y लेस देन इक्वल टू 4, तो x प्लस लेस देन वाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू मिला 0 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 0 4 से छोटा है? हाँ, 0 4 से छोटा है, मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ट्रू हो गया, ये सही है, दिस इज ट्रू। इसलिए अब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा, सो द पोर्शन कंटेनिंग 0 0 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। पोर्शन 0 0 क्या करेगा, आप कंटेन करेगा, और तब जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो आपका इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब दो चीज़ आपने क्वेश्चन में देखो दिया है, एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है भाई इसकी मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करेगा yx रिप्रेजेंटेड बाय द y एक्सिस, और इसका जो वैल्यू होता है वो कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में, इधर देखो यहाँ पे, इधर राइट हैंड साइड में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब इसके यहाँ ऊपर। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा हमें कहीं नहीं जाना, लेफ्ट में भी नहीं, राइट में, ऊपर कहीं नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कंसंट्रेट करना है और वहीं पे हमारा क्या होगा, वैल्यू जो है मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं तो अब हमारे सॉल्यूशन को हम देखते हैं कैसे हम लोग हमारा ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए ग्राफ को हमारे पास जो भी वैल्यू है हम वो सारे अप्लाई करेंगे। देखो ये है हमारा फिगर, तो फिगर में हम लोग का ये कहता है कि पहला जो हमारा पॉइंट मिला था A30 मिला था और दूसरा 02 मिला, हमने नाम दे दिया A और B। फिर हमने यहाँ पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया। ये लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर जो दूसरा पॉइंट हमें मिला है वो है C और D 4001। फिर हमने यहाँ भी लाइन को ड्रॉ किया। यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्यूशन है, देखो पहला वाला जो लाइन था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मतलब इसका सॉल्यूशन कहाँ जा रहा था, ऐसे ऊपर, ओरिजिन को ये कंटेन नहीं करेगा। लेकिन दूसरा वाला जो इक्वेशन था, ये वाली लाइन का जो इक्वेशन था, ये 0 को कंटेन कर रहा था, मतलब ये कहता है कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ होगा, इसके अब नीचे होगा। लेकिन हम उसी को सॉल्यूशन सेट कहते हैं जो मेरा कॉमन पोर्शन होता है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन पोर्शन होता है, और दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो है मेरा ये वाला पोर्शन। तो इसीलिए इसको हमने शेडेड कर दिया, और अब हम कहेंगे कि दिस शेडेड रीजन will give us the solution set. So hence the shaded region represents the solution set of the given in equation. I hope you all understand it very well. If having any doubt, give me a comment in comment box. Okay, thank you all.